بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار وقال عز وجل فی مقام آخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ محترم حاضرین اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم پھر سے ایک بار اس دینی مجلس اور علمی مجلس میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس طرح سے مل بیٹھنے کو، دینی اور علمی باتیں سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز شرک اور شرک کی قسموں پر ہم مختصر طور پر بات کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اگر کوئی آپ میں سے بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، شرک کیا ہے؟ شرک کی تعریف کر سکتے ہیں آپ، کچھ بھی جو آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، یا آپ نے جو بھی سمجھا ہے درس سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع، سجدہ، منتیں، نیاز، جی ماشاء اللہ، غیر اللہ کے سامنے کرنا۔ اور کوئی بول سکتے ہیں، کچھ بھی، کوئی دقت نہیں ہے۔ مختصر یہ آپ نے جو کہا بالکل صحیح جواب ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو کسی اور کو دے دینا۔ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے کسی کو حق دے دینا، پارٹنر بنا لینا۔ جی، کوئی بھی حق۔ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لائٹ جیسے ہے، لائٹ جہاں پہ لگتی ہے، جہاں پہ لگاتے ہیں ہم روشنی حاصل کرنے کے لیے، اس جگہ اگر پنکھا لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ لائٹ کی جگہ کو بڑی سرک میں گیا، چھوٹا سرک ایسا ہو گیا کہ ابھی ہم وہاں بیٹھیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ابھی ہم کان کھلائیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی، تو یہ جو ہے نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، عربی میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھ دینا۔ جیسے لائٹ کی میں نے مثال دی، لائٹ لگانے کی جگہ ہے، وہاں پر ہم پنکھا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ بیوقوف کہیں گے، کیونکہ وہ لائٹ کی جگہ ہے، پنکھا کی نہیں۔ تو اسی طرح سے عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، یقین، کسی چیز کا یقین ہو، بھروسہ، کسی چیز کا بھروسہ ہو، کوئی نام، کوئی بھی نام ہو، اسی طرح سے کوئی بھی صفت ہو، کوئی بھی خوبی ہو، یہ جو نام ہے، خوبی ہے، اسی طرح سے کوئی بھی عبادت ہے، اسی طرح سے کوئی بھی ہمارا عمل ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نام اللہ کے لیے ہے، خوبی اللہ کے لیے ہے، خاص کیا ہے اس نے، کوئی کام پیدا کرنا، اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، ابھی باتیں آئیں گی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ گویا کہ اسے رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے کاموں کی لسٹ میں، ہم اسے کسی اور کی لسٹ میں ہم رکھ دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ مختصر تعریف۔ تو ہم ایسے ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں، ایک سینٹنس میں، کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے کسی بھی حق کو کسی اور کے لیے دے دینا، کسی اور کو دے دینا، یہی شرک ہے۔ تو شرک کی اقسام کئی ایک ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے توحید سمجھا ہے صحیح سے، تو آپ شرک کو آسانی سے سمجھ جائیں گے، یا پھر شرک کو سمجھیں گے تو توحید کو سمجھ جائیں گے۔ دونوں چیز لازم و ملزوم ہے۔
अगर आप एक चीज़ को समझते हैं दूसरी चीज़ को खुद ब खुद समझ जाएंगे। इसलिए तौहीद और शिरक दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप तौहीद को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह शिरक से आप खुद ब खुद बच जाएंगे। इसी तरह से आप शिरक को अगर समझ लेंगे तो शिरक में वाक़ई नहीं होंगे और सिर्फ तौहीद ही तौहीद हमारी ज़िंदगी में होगा। तो तौहीद, जिस तरह से तौहीद की कितनी किस्में हैं? 3। क्या क्या? तौहीद रुबूबियत जी, तौहीद उलूहियत जी, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही 3 किस्में हैं ना, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो उसी तरह से शिरक की भी हम 3 किस्में कर सकते हैं। उलमाए किराम ने 3 किस्में की हैं और 2 किस्में भी की हैं। यह 2 तरह से इसकी तकसीम हो सकती है। कोई बताए? जी बताइए, शिरक की किस्में। शिरक अकबर, शिरक असगर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। शिरक असगर, शिरक अकबर, बड़ा शिरक, छोटा शिरक। और एक इसी में किस्म है शिरक खफ़ी। कुछ लोगों ने किस्म कहा है, या हम इसको किस्म नहीं कहते, लेकिन शिरक खफ़ी का माना छुपा हुआ शिरक। ठीक है, शिरक अकबर, शिरक असगर 2 तरह के शिरक हुए। अब ये खफ़ी जो छुपा हुआ शिरक है, ये कभी कभी छुपा हुआ शिरक अकबर में भी पाया जाता है, बड़ा शिरक में भी, और कभी भी असगर यानी छोटा शिरक में भी पाया जाता है। या फिर तौहीद की जिस तरह किस्म है, हम उसको शिरक की भी वही किस्में बना सकते हैं। तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो हम इसी को किस तरह से बना सकते हैं? शिरक फिल उलूहिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, इस तरह से शिरक को भी इसी तरह की तकसीम कर सकते हैं। रुबूबियत में अल्लाह को एक मानना, तो उसी तरह से हम कहेंगे शिरक फिर रुबूबिया, रुबूबियत में शिरक करना। उलूहियत में अल्लाह को एक मानना, एक जानना, तो इसी तरह से शिरक फिर उलूहिया, उलूहियत में शिरक करना। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफ़ात हैं, उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना, एक जानना। इसको फिर से रिपीट करो। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके अस्मा में से, अस्मा में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं, इसी तरह से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूबियाँ हैं, जो सिफ़ात हैं, उनमें एक जानना। तो शिरक की इस तरह से तकसीम कर सकते हैं, शिरक फिल अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं, उनमें किसी को शरीक करना। बात समझा गई ना? तौहीद की कितनी किस्में? 3 किस्में, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो उसी तरह से शिरक की भी हम 3 किस्में करते हैं। फिर से दोहरा दे रहे हैं, शिरक की भी 3 किस्में, रुबूबियत में शिरक, उलूहियत में शिरक, अस्मा व सिफ़ात में शिरक। बिल्कुल वाज़ेह है। इसी तरह से जैसा कि इससे पहले बताया गया, दूसरी किस्म ये कर सकते हैं शिरक अकबर, शिरक असगर, दोनों याद रखिए आप लोग। तो इंशाअल्लाह इसमें हमें बाद में जो बातें होंगी उनको समझने में आसानी होगी। शिरक क्या है, इससे पहले बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफ़ात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अफ़आल हैं, जो काम हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इबादतें हैं, उनमें किसी और को शरीक कर लेना, किसी और को पार्टनर बना लेना। शिरक ये नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और की इबादत करना। नहीं, कुछ लोगों से कहा जाता है कि आप शिरक कर रहे हैं, ये आपका अमल ये शिरक वाला अमल है। तो कहते नहीं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए रुकू सजदा करते हैं, हम अल्लाह से भी मांगते हैं, हम अल्लाह से भी मांगते हैं। तो सिर्फ अल्लाह से भी मांगना ये नहीं है, तौहीद ये नहीं है, बल्कि तौहीद ये अल्लाह ही से मांगना। भी और ही में फ़र्क समझ रहे हैं ना? भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शिरक हो जाएगा। हम मांग रहे हैं किसी और से भी, अल्लाह से भी मांग रहे हैं। और तौहीद क्या है? अल्लाह से ही मांगना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगना। इसकी मिसाल बहुत ही बिल्कुल वाज़ेह है। एक मिसाल अगर दी जाए, शौहर बीवी, तो बहुत आसानी समझ जाएगी। अगर बीवी कहे कि मैं आप की भी बीवी हूँ, तो क्या समझ में आएगा इससे? 2 जुमले हैं। बीवी कहे अपने शौहर से मैं आपकी ही बीवी हूँ, और एक दूसरा जुमला कहे मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो शौहर किससे राज़ी होगा और किस पर नाराज़ होगा?
किस जुमले से? आपकी ही। और अगर कहे बीवी, मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो क्या समझ में आएगा? यानी आपके साथ किसी और के साथ भी रिश्ता मेरा है, कोई और भी शौहर है, मेहमान। इसी तरह से इबादत हो, मामलात हो, या इसी तरह से अस्मा व सिफ़ात वगैरह, जो यकीन है, भरोसा भी जो बताया गया। तो शिर्क कितना बड़ा गुनाह है इसको बताने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में बहुत सारे मकामात पर जितने भी अंबिया किराम का वाक़िया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, सब में शिर्क शिर्क शिर्क, यानी शिर्क से बचो, तौहीद को अपनाओ। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाने के बाद ये भी कहा, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये लोग अंबिया, ये जो रसूल आए हैं, अगर ये लोग भी शिरक करते, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, कि उन लोगों ने जो भी अमल किया शिरक की वजह से तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी आयत में फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुमुन्नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो पहले आयत पढ़ी गई कि जो शिरक करता है अल्लाह के साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। गोया के शिरक करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ज़ालिम कहा है। और एक आयत बहुत ही मशहूर है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा, और उसके अलावा जितने गुनाह हैं अल्लाह अगर चाहे तो माफ़ कर देगा। ठीक है। अच्छा, शिरक क्या है ये भी बात समझ में आ गई। शिरक की कुछ सूरतें, कुछ शक्लें अब बता सकते हैं क्या क्या शिरक है मुख्तसर में? दुआ मांगना जी, रुकू करना जी, न्याज नज़र जी, माशाअल्लाह, जी जी। और बोलिए। दुनियाई मामलात में भी 3 बार से ज़्यादा किसी एक शख्स से मांगना, ये भी शिर्क में आता है। अच्छा, और कोई क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, या हम किसको शिरक कहेंगे? जैसे शिर्क असगर में से क्या बोलता है, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना। जी माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खुशी की बात है। ये छोटी छोटी बातें भी आप लोग जानते हैं, बारीकी बातें भी। तो देखिए, शिरक की बहुत सारी सूरतें हैं। किसी और से, ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा या अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि किसी और से मांग रहे, अल्लाह से ही मांग रहे, जैसा कि बताया गया। तो मुर्दों से हो, जिंदों से हो, बुतों से हो, या किसी आत्मा से हो। कुछ लोग आत्मा से भी मांगते हैं। मुर्दे लोग जो गुजर चुके हैं उनको ज़िंदा समझ के ये करना। तो इस तरह से फरियाद करना, तलब करना, नज़र नियाज करना, उनके लिए ज़बिया पेश करना, ये क्या है? ये सब शिरक की सूरतें हैं, शिरक की सूरतें हैं। और ये सब शिरक अकबर है। ठीक है, शिरक अकबर है। शिरक की दूसरी किस्म शिरक असगर है। शिरक असगर क्या है बता सकते हैं आप लोग? छोटा शिर्क। जी, छोटा शिरक, ये तर्जुमा हो गया उसका, ट्रांसलेट कर दिया आपने। जैसे बताएं कि वो अल्लाह के सिवा जी माशाल्लाह। खाना तो शिरक असगर असल में इसकी तारीफ़ इस तरह करेंगे हम कि जिस अमल का ज़िक्र कुरान और सुन्नत में आया हो कि ये शिरक है, जैसा कि आपने बतलाया अभी, किसी की कसम खाना अल्लाह के अलावा, तो ये शिरक है। लेकिन शिरक अकबर के जिन्स से ना हो, शिरक अकबर की किस्मों में से ना हो। जैसे किसी भी इबादत में रियाकारी, और इसी तरह से झूठी किसी और की कसम खाना। इसी तरह से मशीयत को, किसी बात की मर्ज़ी को, किसी चीज़ की मर्ज़ी को अल्लाह के साथ साथ किसी और को उसमें शरीक कर लेना। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारा ये मुआशरा इससे महफूज है। कुछ लोग कहते हैं जैसे अल्लाह और आप चाहें तो हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, ये तो कहना बिल्कुल शिरक है कि अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आज है हमारे मुआशरे में, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। अगर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप चाह लें तो होता है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। तो किसी को इस तरह भी कहना कि अगर अल्लाह चाहे और आप चाहें तब भी ये शिरक हो जाएगा।
बल्कि इसका तरीक़ा क्या है, क्या कहना, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, किसी के पास गए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, वो कह रहा नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त हमारा तरीक़ा क्या 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 होना चाहिए? लोग कहते हैं ना आप चाहें तो हो जाएगा, या अल्लाह और आप चाहें तो हो जाएगा, क्या कहेंगे? अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। जी, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, अल्लाह और उसके बाद फिर आप चाहें तो हो जाएगा, फिर लगाना वहाँ पर है। अल्लाह के बाद अगर आपकी मर्ज़ी हो, आपकी कोशिश हो तो ये काम हो जाएगा। इस तरह से हमारे अल्फाज होने चाहिए, इस तरह से हमारा तरीक़ा होना चाहिए, गुफ्तगू का तरीक़ा, क्योंकि हमारे अल्फाज में, हमारे जुमलों में ये चीज़ छुपी रहती है कि हमारा यकीन क्या है, हमारा भरोसा क्या है, और हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रियाकारी की बात अभी आई। रियाकारी ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए। ये बहुत सारी हमारी अहम इबादतों को भी बर्बाद कर देती है रियाकारी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन अक़वफ़ा मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र, कि तुम्हारे ऊपर मैं सबसे ज़्यादा जिस बात से डरता हूँ वो शिरके असग़र है, छोटा शिरक, जो अभी बयान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, सहाबा इकराम ने पूछा, वमा शिरकुल असग़र या रसूल अल्लाह, कि शिरक असग़र क्या है, छोटा शिरक? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिया। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है। इसी तरह से जैसा कि वो हदीस अभी जो आपके सामने पेश की गई, मन हलफ़ बिशैइन दून अल्लाहि तआला फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाई वो क्या है, वो शिरक वाला अमल करता है, शिरक वाला अमल करता है। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, मशहूर सहाबी हैं, कहते थे कि मैं किसी चीज़ पर झूठी कसम खाऊं अल्लाह की, ये चीज़ मेरे लिए मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है बनिस्बत इसके कि मैं किसी चीज़ पर सच्ची कसम खाऊं अल्लाह के अलावा किसी और की। बात वाज़ेह हुई ना? मैं किसी बात पर झूठी कसम खाऊं, ये मेरा सामान नहीं है, मैंने कसम खा ली, अल्लाह की कसम ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है, ये मेरा मोबाइल नहीं है, मैंने कसम खा ली, अल्लाह की कसम ये मेरा मोबाइल है। मैं झूठा हूँ कि नहीं? मैंने झूठी कसम खाई ना। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसऊद क्या कहते हैं, ये चीज़ मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मेरा ये मोबाइल होते हुए मैं ये कसम खाऊं, काबा की कसम ये मेरा मोबाइल है, मेरी माँ की कसम, ज़मीन की कसम ये मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है ये, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कसम खाऊं कि अल्लाह की कसम नहीं, बल्कि क्या, काबा की कसम, ज़मीन की कसम, तेरे सर की कसम, मेरे बच्चे की कसम, मेरी माँ की कसम, मेरी बीवी की कसम। ये जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना किसी सच्ची बात पर, ये अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बुरा है बनिस्बत किसी चीज़ पर मैं झूठी कसम खाऊं। किस लिए बता सकते हैं? क्योंकि जी बोलिए। क्योंकि शिरक असगर हो जाएगा सर। जी, शिरक असगर। झूठ भी बोल रहे, कसम भी खा रहे। झूठ नहीं, जैसे मेरा नहीं उस पर भी अल्लाह की कसम खा रहे हैं। तो अल्लाह की कसम मेरा नहीं है, अल्लाह की कसम खाया तो ये चलेगा, कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद। ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये है और मैं कसम खा रहा हूँ काबा की कसम, किसी और चीज़ की, अल्लाह छोड़ करके किसी और चीज़। अभी थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा। अभी जो बताया गया शिरक असगर, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाना, ये क्या है? शिरक असगर है। शिरक असगर है, शिरक है ना। और झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना गुनाह है ना, कबीरा गुनाह। माशाल्लाह, कबीरा गुनाह जान रहे हैं। तो यहाँ पर अब्दुल्ला बिन मसऊद कहना ये चाहते हैं कि ये कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाए, वो गुनाह कर दें हम, खाओ कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह क्यों ना हो, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा आसान है इस बात से कि मैं अल्लाह के साथ शरीक करूं। बात वाज़ेह हो रही ना? देखिए, क्योंकि मैं गुनाह कर रहा हूं, बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। लेकिन शिरक के बारे में अल्लाह ने कहा माफ़ नहीं करेगा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही। तो ये कसम खाना अल्लाह के अलावा किसी और की, ये क्या है? शिरक है। और झूठ बोलना ये क्या है? कबीरा गुनाह है। तो कबीरा गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। तो इसीलिए हम जब भी किसी बात की कसम खाएं, किसी बात पर कसम खाएं तो अल्लाह की कसम खाएं,
इसका मतलब ये नहीं, अब्दुल्लाह बिन मसूद ये नहीं कह रहे कि झूठी कसम अल्लाह की खा लो, बल्कि तरगीब दे रहे हैं कि शिर्क से बचने के लिए अगर दो ऑप्शन हो, शिर्क से बचने के लिए आपको गुनाह करना पड़े तो आप गुनाह को आसान समझिए, शिर्क मत कीजिए। लेकिन आज क्या होता है, आज हमारे माशरे में क्या होता है, दोनों तरफ़ैन की जानिब से, दोनों जानिब से कोताही है। एक तो कसम खाने वाला कहता है अल्लाह की कसम, ये तो छोटा कसम है, यही समझते हैं ना, छोटी कसम है, अल्लाह की कसम है, कोई मानेगा नहीं। तो इसलिए क्या कहता है, अपने बच्चे की कसम, 2 महीने का बच्चा है अभी, उसकी कसम मैं खा के कहता हूँ, है ना। अपनी बीवी की कसम, आज से नशा नहीं करूँगा, बोलता है ना, तेरे सर की कसम, आज से नशा नहीं करूँगा। वहीं पर अल्लाह की कसम खाने को छोटा समझता, छोटा। एक तो उसकी तरफ से कोताही, दूसरी कसम खिलाने वाले की जानिब से भी कोताही है, क्योंकि हम यकीन नहीं करते अगर अल्लाह की कसम हमारे पास खाई जाए, अल्लाह की कसम आज के बाद नशा नहीं करूँगा, तो क्या कहती है उसकी बीवी या उसका दोस्त, अल्लाह की कसम तो हर कोई खाता, इस बच्चे की कसम खा के, या मेरे सर की कसम खाओ, मेरे मोहब्बत की कसम, कहते हैं ना लोग। तो दोनों तरफ से कोताही, कसम खिलाने वाले की भी कोताही है कि अल्लाह की कसम पर जो यकीन होना चाहिए, किसी और की कसम पर यकीन नहीं होना चाहिए। एक तो आप अल्लाह की कसम खा के एक बड़ी कसम खा रहे हैं, दूसरा ये कि अगर अल्लाह की कसम को छोड़कर दूसरे की कसम खिलवा रहे हैं या फिर खा रहे हैं, तो ये शिर्क है, और शिर्क अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। 2 किस्में बयान हो गई, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। इसी तरह खफ़ी आप देख लीजिए, खफ़ी क्या है। खफ़ी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि रियाकारी जो बतलाया गया, रियाकारी ये क्या है, शिर्क असगर है ना। तो शिर्क असगर और शिर्क अकबर दोनों में बताया था खफ़ी, छुपा हुआ शिर्क। ये शिर्क असगर में भी पाया जाता है और शिर्क अकबर असगर में भी पाया जाता है। शिर्क असगर की मिसाल रियाकारी है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तिलावत कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे अंदर रियाकारी है या नहीं आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। इबादत कर रहा हूँ, 10-10 मिनट रुको और सजदा हो रहा है मेरा, रियाकारी पता चलेगा? मैं किसी को दे रहा हूँ सदका खैरात या मस्जिद के लिए पैसा, रियाकारी पता नहीं चलेगा। तो यही क्या है, ये शिर्के असगर भी है और शिर्के खफ़ी भी है ना। तो इसकी सिफत हो गई। इसी तरह से शिर्के अकबर समझ लीजिए कि मैं ज़बीहा तो दे रहा हूँ, काट रहा हूँ, लेकिन दिल में क्या है, ये चीज़ उसके लिए, फ़लाँ को खुश करने के लिए, फ़लाँ मुर्दे को या फ़लाँ मेरे बुज़ुर्ग को खुश करने के लिए, ये क्या है, शिर्क अकबर है। और दूसरी चीज़ क्या है, शिर्क खफ़ी भी है। शिर्क अकबर हम ज़बरदस्त ज़ोर से हम मांग रहे हैं, या गौसे आज़म मदद कर, अरे पीराने पीर मदद कर, वगैरह वगैरह, ये सब बातें जब बोल रहे हैं हम, तो क्या है, ये खुला हुआ शिर्क हो गया। शिर्क अकबर भी है, बड़ा शिर्क भी है, और खुलेआम कर रहे हैं। और अगर उसी को हम सजदे में जा कर के दुआ करें, अल्लाह से जहाँ दुआ करनी थी, तो उसे हम छुपा करके करें, तो क्या है, शिर्क अकबर भी है, बड़ा शिर्क भी है, और छुपा हुआ शिर्क भी है। समझ में आ गई ना, ये सिफत है सिर्फ। अब देखिए गुनाहों की किस्में, और शॉर्टकट अभी आपके सामने रख दूं, अभी जो बताई गई बातें उसी में से गुनाह की मोटी मोटी समझ जाइए 4 किस्में हैं। एक ये कि शिर्क अकबर जो बताया गया अभी, सबसे बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर हमारे और आपके आमाल में, सबसे बड़ा गुनाह हमारे और आपके यकीन और अकीदे में, सबसे बड़ा गुनाह क्या है दुनिया के अंदर, शिर्क है, और ये शिर्क अकबर है, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, शिर्क असगर का, जिसकी तफसील बता दी गई है, जिसकी मिसालें भी दे दी गई। उसके बाद किसका नंबर आता है, शिर्क खफ़ी नहीं, शिर्क खफ़ी नहीं, इससे पहले बात आई थी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल ये कीजिए, तो कसम वाला, तो उसमें क्या कहा था, क्या कहा गया था, इससे बेहतर है कि मैं, यानी शिर्क करने से बेहतर क्या है, मैं क्या करूं, गुनाह कबीरा गुनाह, ठीक है। तो तीसरे नंबर में कबीरा गुनाह है, जिस पर ख़ास वईद मुतय्यन हो, यानी जैसे बड़े बड़े गुनाह जिस पर ख़ास वईद है, चोरी करने पर क्या है, हाथ काटना है, तो ये कबीरा गुनाह। इसी तरह से झूठ बोलने पर मुनाफिक की अलामत कहा गया है, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ मिसालें बताइए जो कबीरा गुनाह है, सूद खाना,
जिना करना, शराब पीना, ये सब क्या है? सब में मुतय्यन है ना, किसी पर कोड़े है ना किसी का जान लेना, ना किसी पर कोड़ा है तो किसी पर कुछ और हद है, किसी पर कुछ है। ये मुतय्यन अगर है उसकी सज़ा शरीयत में, कुरान और हदीस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुनाह कबीरा। और गुनाह सगीरा क्या है? बस इसका अपोजिट कर दीजिए। गुनाह तो है लेकिन उस पर कोई हद नहीं नाफिज की गई है, बताई नहीं गई इसकी सज़ा ये है। समझ में आ रही ना बात? बिल्कुल आसान है। गुनाह कबीरा वो जिसको गुनाह कहा गया है और उस पर सज़ा भी मुतय्यन है कि ये सज़ा मिलेगी, हाथ काट दिया जाएगा या रज्म कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। इसी तरह से फांसी अगर कोई लगाता है तो क्या है? ये कबीरा गुनाह है, उस पर मुतय्यन वईद सुनाई गई है ना, वईद सुनाई गई कि जहन्नम में जाएगा। इसी तरह से कसम खाने वाला ये तो खैर दूसरी बात हो गई। तो जिस पर वईद सुनाई गई है वो कि जहन्नम में जाएगा, या फिर जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाएगी, या फिर दुनिया में सज़ा मिलेगी वगैरह, ये सब चीज़ें गुनाह कबीरा है। और इसका ऑपोजिट गुनाह तो है लेकिन उस पर सज़ा मुतय्यन नहीं है, सज़ा मुतय्यन नहीं है, इसलिए उसको गुनाह सगीरा कहते हैं। देखिए ज़्यादा वक्त हो जाएगा वरना और ये करते हैं। अब शिर्क अकबर और शिर्क असगर, ये दोनों चीज़ों के दरमियान कुछ फ़र्क हम वाज़े करते हैं। शिर्क अकबर दोनों में, ताकि पता चल जाए हमें क्या होता है क्या नहीं होता। शिर्क अकबर दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। अगर शिर्क अकबर हमारे अंदर पाया जाता है, हमने शिर्क ऐसा किया जो अकबर है और तौबा नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है? दायरे इस्लाम से खारिज। हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, जबकि शिर्क असगर दायरे इस्लाम से खारिज नहीं करता है। ये फ़र्क पहला। शिर्क अकबर अगर हम करते हैं तो पिछले जितने अमाल हमारे हैं सब नेकी में तब्दील हो। शिर्क अकबर, हाँ क्या होगा? वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू, सब ज़ाये, सब बर्बाद। अंबिया के बारे में कहा गया अगर वो लोग भी शिर्क करें, जितने अमाल, जितनी भी दावत दी है, तबलीग की है, सब का सब बर्बाद। जबकि शिर्क असगर में ऐसा नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। ठीक है ना? इसी तरह से शिर्क अकबर अगर कोई करता है तो जान व माल को हलाल कर देता है। मुस्लिम अगर हुकूमत है तो शिर्क अकबर का अगर कोई इर्तिकाब करता है तो गोया कि वो क्या हुआ? मुर्तद हो गया, मुर्तद ही हुआ ना। और मुर्तद की सज़ा क्या है? कत्ल कर देना। जबकि शिर्क असगर में क्या है? दायमी तौर पर जहन्नम में रहने का ये, हाँ। शिर्क अकबर एक और ये है कि अगर शिर्क अकबर कोई करता है और तौबा नहीं करता तो फिर हमेशा वो कहाँ रहेगा? जहन्नम में रहेगा। जबकि शिर्क असगर वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। जो उसके गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो उसकी सज़ा दे करके फिर उसे जन्नत में जगह दे। ठीक है? इसी तरह से इंसान ये एतक़ाद रखे कि उसका निज़ाम कायनात में तसर्रुफ़ और अमल में दखल हासिल है। यानी इंसान ये यकीन रखे या एतक़ाद रखे कि किसी और का अल्लाह रब्बुल, इससे जो शुरू में बात बतलाई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सब हुकूक़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सब हुकूक़ है। किसी को पैदा करना, किसी को शिफा देना, किसी को औलाद देना, किसी की मिन्नतें पूरी करना, ये सब किसके हुकूक़ हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। ये सब काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास हैं। तो ये चीज़ करना, ये क्या हो जाएगा? शिर्क अकबर। और एक फ़र्क देखिए यहाँ पे, अगर किसी चीज़ को हम गोया के किसी शख्स को हम वसीला बनाते हैं, किसी शख्स को, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, किसी चीज़ को हम या तो हम उससे मदद तलब कर रहे हैं या उसने कर दिया मेरे लिए, तो ये यकीन रखना, एतक़ाद रखना कि उसी से हुआ है, ये क्या है? शिर्क अकबर है। और ये यकीन रखना, ये एतक़ाद रखना, ये सबब बना है, ये क्या है? शिर्क असगर। इसको मिसाल से समझिए, जैसा अगर कोई तारा निकला हमारे लिए, जैसा कि पेपर वगैरह में, अभी अखबार वगैरह में आता है कि अगर ये तारा निकला या ये गिरा यहाँ से वहाँ चला गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दौलतमंद बन जाएंगे, शादी इस महीने हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो अगर ये यकीन रखा जाए, एतक़ाद रखा जाए उस तारे के निकलने की वजह से या गिरा को फलां जगह जाने की वजह से
हमारी ज़िंदगी में तब्दीली हुई है, औलाद पैदा हो गई, इतने दिनों से इतने साल से हम मिन्नत कर रहे थे लेकिन फला गिरा फला जगह चली गई तो क्या हो गया, हमें औलाद मिल गई। ये यकीन रखना, इत्तेकाद रखना कि उसी की वजह से हुआ है, तो क्या है, शिरक अकबर। शिरक अकबर बड़ा शिरक है जिसे माफ़। और अगर ये मानना कि वो सबब बना है, जैसा कि आज बारिश वगैरह के सिलसिले में ये भी देखिए, यहाँ पर भी बहुत हमारा यकीन गड़बड़ाता है बारिश वगैरह के सिलसिले में कि अगर फला जगह फला चीज़ है तो उसकी वजह से बारिश हुई है, उसी वजह से, या कह लीजिए कि उसी ने बारिश बरसाया है, वो जो माहौल ऐसा बन गया, ऐसी फ़ज़ा बन गई, उसकी वजह से बारिश हुई, उसी ने बारिश बरसाया है, ये क्या करना, ये क्या है, शिरक अकबर है। और ये होना ऐसा हुआ है, ये सबब बना है, ये सबब बना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र ही ना करे आदमी, ये सबब बना है, तो ये क्या है, शिरक असगर है। इसलिए हमें हर सबब मानना, ज़रिया मानना, ये शिरक असगर हो जाएगा। और उसी को बज़ाते खुद ये मानना कि वही उसी ने किया है, तो क्या हो जाएगा, शिरक अकबर। ये मोटी मोटी बातें थी इसके ताल्लुक़ से। और भी शिरक के सिलसिले में कई बातें हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी और तौहीद का जब हम बयान करेंगे तो उसमें जो उसकी ऑपोजिट होती हैं जो चीज़ें, इंशाअल्लाह उनको बयान करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट हो शिरक के सिलसिले में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें बतलाई गई आपके पास, शिरक अकबर, शिरक असगर।